Hello everyone. Today we will discuss aldehydes and ketone. Generally, aldehyde and ketone both have almost similar reaction because both have the carbon oxygen double bond. Due to this carbon double bond oxygen bond, they are also called carbonyl compound. Carbonyl compound. Only because of this carbon oxygen double bond. Both aldehyde and ketones have the same journal formula. This is CnH2nO. But because of different functional group, they have some different physical and chemical properties. Now, what is aldehyde? They are considered as the derivative of hydrocarbon, where two hydrogen is replaced by the oxygen atom. Both aldehyde and ketone are considered as derivative of hydrocarbon, are considered as derivative of hydrocarbon. Where in case of aldehyde, the terminal hydrogen, aldehydes terminal terminal hydrogen is replaced by oxygen atom. So we will write here like terminal hydrogen. And in case of ketones, it is middle hydrogens. Middle hydrogen. For example, suppose CH3 and this is the last or we can take the another example so that we can indulge ketone also. CH3 CH2 CH3. If suppose in this compound the last two hydrogen are replaced by the oxygen atom CH3 CH2 CHO, then it is called aldehyde. If suppose the middle middle hydrogen is replaced by the oxygen, for example CH3 C double bond O CH3, then it is called ketone. So this is all about the aldehyde and ketone introduction. Now electronic structure. So what is electronic structure? So in the electronic structure, what we will study that suppose this is the CH3 C double bond OH. Here what we will see, this carbon is sp2 hybridized. sp2 hybridized means it has the trigonal planar geometry. It has the trigonal planar geometry, and the angle
between these three means here this angle, and this angle, all angle are 120 degree. In case of ketone, this is also the sp2 hybridized carbon, and similarly all it also has the sp2 hybridization and trigonal planar geometry. ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री. तो यहाँ पे what will happen because of this trigonal planar geometry, then if suppose nucleophilic addition substitution reaction will take place, then the nucleophile can attack above the plane and at the same time below the plane. तो वो दोनों साइड से जो है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकता है. सो ये यहाँ पे हमारे को देखने को मिल रहा है कि जो बिकॉज ऑफ दिस sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक बोथ साइड. नाउ वन मोर थिंग, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन. So see this one, why this aldehyde are more reactive than ketone. So I am writing here also question, why aldehydes are more reactive than ketones. So why these aldehyde are more reactive than ketone? First, see, if suppose both have C double bond O structure, means CH3 C double bond O, this oxygen will attract the electron and get the partial negative charge, and this one will get the partial positive charge. Now in case of aldehyde, the H is there, but in case of ketone, this is CH3 or R group is there. This partial positive charge in case of aldehyde is only neutralized by one alkyl group, but in case of ketone, it is neutralized by the both side plus I effect. So the intensity of partial positive charge will be less in case of aldehyde compared to ketone. So it is easier to nucleophile to attack on aldehyde rather than ketones. First thing. Second thing, in aldehyde it's a terminal point, but in case of ketone it's not terminal. The C double bond O is sandwiched between the two alkyl group. So देर इज मोर स्टेरिक हिंड्रेंस. तो मोर स्टेरिक हिंड्रेंस के केस में क्या होगा, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अटैक न्यूक्लियोफाइल इन कीटोन. सो आई एम राइटिंग हियर टू मेजर characteristics that's why because of that aldehyde are more reactive than ketone. The first one is more inductive effect, more inductive effect in plus I effect in ketone, and second thing, more steric hindrance in ketone. More steric hindrance in ketone. तो ये because of these two property aldehyde are more reactive than ketone. Now nomenclature. Simply we know for nomenclature of aldehyde we use the word L. So this one has the one carbon, so we will named this compound as methanol. This is ethanol.
and the common name of this is acetaldehyde. That is more common name. Similarly, this is benzaldehyde. 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 Wait. This is benzaldehyde. Second more thing, they are also called this one, this carbaldehyde group. So I can also name this compound benzene carbaldehyde. Benzene carbaldehyde. This one we can also name as this is 1 carbon and this is 2 carbon. So how will name this one? This is 2-phenyl ethane 1-ale. If suppose such kind of compound is there, so we can name this compound like 2-phenyl ethane 2-phenyl ethane 1-ale. Similarly, we can also name this compound as cyclohexane carbaldehyde. Cyclohexane carbaldehyde. Next, for the nomenclature of ketone, we use the word alkane plus one. This is alkanone. So the common name of this compound is acetone. That is also used in nail polish remover. Sometimes they ask this question also, the use of acetone. So basically it is a nail polish remover. तो एसीटोन का जो if suppose we are taking the IUPAC name, then it is 1, 2, 3 propane 2-on. Propane 2-on. तो ये हमारा इसका नाम होगा. सिमिलरली 1, देखो अगर हम नेमिंग करनी है तो वी विल नेम द साइड वेयर दिस C डबल बॉन्ड O ग्रुप विल बी वेरी नियर. तो अगर हम इस साइड से करेंगे तो 1, 2, 3, 4. देन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज prop 2-on. हम इसको सॉरी ब्यूट 2-on बिकॉज देर आर 4 कार्बन ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ब्यूट 2-on करके भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट this one commonly named as acetophenone. The common name of this compound is acetophenone, but we can name this compound also. Suppose this carbon is 1 because this is the functional group, तो हम इसका नाम लिख सकते हैं 1-phenyl 1-on नहीं 1-phenyl eth1-on. एथेन 1-on. तो हम इसका नाम ऐसे लिख सकते हैं 1-phenyl ethane 1-on, and commonly this compound name is acetophenone. Similarly, this one is benzophenone and इसको हम डाईफिनाइल कीटोन भी बोलते हैं. डाईफिनाइल कीटोन. You can call this compound also benzophenone. तो इसका दूसरा नाम अगर आपने लेना है तो आप इसको बेंजोफिनोन भी इसको आप बोल सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. अगर इस तरीके का कोई कंपाउंड आता है तो हम उसकी नेमिंग कर सकते हैं. सेकेंड,
मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट वी आर टेकिंग फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल से कैसे कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो दैट कि जब भी कोई अल्कोहल होता है, सपोज दिस इज RCH2OH, और इस पर कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसकी अगर रिएक्शन कराते हैं, उसको इसकी प्रेजेंस में थोड़ा सा हीटिंग करते हैं, तो प्राइमरी जो अल्कोहल होता है वो आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड सेकेंडरी अल्कोहल दे कन्वर्ट इनटू द कीटोन। फॉर एग्जांपल this mild oxidizing agent convert it into the RCHO, and if suppose there is a secondary alcohol is there RCHOH and R, and इसका ऑक्सीडेशन अगर हम करेंगे then we will get the RC double bond OR. Now what is mild oxidizing agent? तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि भाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए कौन कौन से हो सकते हैं। एक PCC होता है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। सेकेंड वन इज पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, PDC इसको बोलते हैं। थर्ड वन हम इस जॉन्स रिएजेंट भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इनमें से अगर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। नाउ इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल वी नीड सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आल्सो एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करते हैं, क्योंकि माइल्ड भी यहाँ पे कर सकता है और स्ट्रॉन्ग दोनों यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आई टोल्ड यू, जैसे KMnO4 एसिडिक मीडियम में होता है एंड K2Cr2C7, ये दोनों के दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो दे विल कन्वर्ट दिस सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन। So hope there is no need to go to the mechanism of this mild oxidizing agent and strong oxidizing agent, how they are converting primary or secondary alcohol to aldehyde and ketone respectively. Now by catalytic dehydrogenation, earlier we also have discussed कि जो copper at 300 degree centigrade, copper at 300 degree centigrade also work like that PDC PCC। तो अगर कोई यहाँ पे हम सपोज वी आर टेकिंग द अल्कोहल RCH2OH, तो मीन्स फाइनली यू कैन रिमेंबर दिस वन आल्सो एज ए जैसा PDC और PCC वर्क करते हैं, ऐसा ही ये कुछ वर्क करने वाला है। मीन्स इसको ये एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल CH3CH2OH, और अगर मैं इस पे कॉपर एज ए कैटलिस्ट एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन करूं, तो ऑब्वियसली आई विल गेट द CH3CHO प्लस H2 not H2O। Similarly for ketone also, if secondary alcohol is there, जैसे CH3CHOH and CH3, एंड अगर सेकेंडरी अल्कोहल पे कॉपर कैटलिस्ट के एज ए कैटलिस्ट वर्क करे और 300 डिग्री सेंटीग्रेड वी kept the temperature, then it will convert into the ketone like CH3 C double bond O CH3। तो ये हमारा कीटोन बन जाता है। और अगर हम टर्शियरी अल्कोहल लेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो विल कन्वर्ट इनटू द एल्कीन। तो ये आपका टर्शियरी अल्कोहल है, और इसको अगर आप हीट करेंगे थोड़ा सा भी
किसी की भी प्रेजेंस में, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज ओपनर ऑक्सीडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसको देख लेते हैं। व्हाट इज ओपनर ऑक्सीडेशन। वैसे तो जेई के सिलेबस, सॉरी 12th के सिलेबस में नहीं है, पर फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज इम्पोर्टेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल को हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस में और एक कीटोन की प्रेजेंस में, या एसीटोन की प्रेजेंस में, या बेंजोक्विनोन की प्रेजेंस में हम इसको एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर चेंज कर लेते हैं। तो इनिशियली ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और फाइनली जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है वो हमें कीटोन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी रिएक्शन आपको दिखाते हैं, और इस ओपेनियर ऑक्सीडेशन की बात ये है कि ये सेलेक्टिवली फॉर सेकेंडरी अल्कोहल होता है, सेलेक्टिवली फॉर सेकेंडरी अल्कोहल। मीन्स नेम रिएक्शन है, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई कोई सेलेक्टिव चीज़ ही होगी। और सेकेंड मोर थिंग, ये और बाकी चीज़ों को अफेक्ट नहीं करता अपने ग्रुप के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लूँ, जैसे CH3 CHOH एंड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अगर मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड अगर डालें, देखो बच्चों एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लिखता हूँ, तो CH3 का होल थ्राइस C डबल बॉन्ड O, CH3 का होल थ्राइस C डबल बॉन्ड CO, तो ये तो हो गया ब्यूटॉक्साइड। और अगर इसको कार्बन को एल्यूमिनियम से अटैच होना है तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, तो दिस इज एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। तो इसकी प्रेजेंस में, और यहाँ पे एसीटोन हमें ना एक्सेस में लेना पड़ता है, एसीटोन या आप कोई दूसरा कंपाउंड जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो वी विल टेक इन द एक्सेस। जैसे साइक्लोहेक्सेनोन भी यहाँ पे ले सकते हैं, साइक्लोहेक्सेनोन भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो C हियर क्या हुआ यहाँ पे बच्चों, ये इसने इसी को केवल अफेक्ट किया, मीन्स सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन। इट विल नॉट अफेक्ट लाइक अगर वहाँ पे कोई डबल बॉन्ड वगैरह होता है तो। फॉर एग्जांपल एक और मैं यहाँ पे रिएक्शन देते हैं। सपोज करो अगर ऐसा कोई रिएक्शन होता है, तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, तो अगर इस पे भी हम एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड साइड का रिएक्शन और एसीटोन की एक्सेस होना चाहिए, ये आई टोल्ड यू, जैसे साइक्लोहेक्सेनोन और कीटोन ग्रुप जनरली होना चाहिए, एसीटोन एक्सेस में होता है, तो हमारा क्या बनेगा, ऑब्वियसली ये डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा और डायरेक्ट ये सेकेंडरी अल्कोहल इट विल कन्वर्ट इनटू कीटोन। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओपेनियर ऑक्सीडेशन। द मैकेनिज्म इज़ नॉट इन आवर सिलेबस। अगर आप बोलेंगे मेरे को कमेंट में लिखेंगे कि सर आप इसका मैकेनिज्म डाल दो, देन वी विल इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट इसके अंदर ये CHO के सेकेंडरी अल्कोहल, CHO के अंदर एक जो इंटरमीडिएटरी होता है CHO के अंदर कन्वर्ट होता है, देन ये CHO फिर एसीटोन के साथ रिएक्शन करके ये कीटोन के अंदर चेंज हो जाता है, और जो आपका एसीटोन होता है वो आपका
सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर चेंज हो जाता है। थर्ड रिएक्शन इज कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल से हमने 3 पार्ट डिस्कस किए हैं, तो तीनों को एक बार रिकैप कर देते हैं। तो फर्स्ट वन था हमारा कंट्रोल ऑक्सीडेशन, जैसे सपोज करो मैं इसको स्टार्टिंग से लिखते हैं फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल से तो सबसे पहले कंट्रोल ऑक्सीडेशन PDC, आई टोल्ड यू, PCC, पायरिडीनियम, क्लोरोक्रोमेट। फिर सेकंड हमारा था आपका कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड का। अगर कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर रखोगे तो भी अल्कोहल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कीटोन के अंदर। और थर्ड वन हमारा ओपेनर ऑक्सीडेशन। ओपेनर ऑक्सीडेशन, इसके अंदर क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ टर्शरी एल्यूमिनियम butoxide या एल्यूमिनियम टर्शरी butoxide. So there are 3 reactions that convert alcohol to कीटोन या एल्डिहाइड। ये केवल स्पेसिफिकली कीटोन के लिए है, ये बोथ एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए है, और ये आपका बोथ एल्डिहाइड प्लस कीटोन के लिए है। मीन्स अगर प्राइमरी है तो एल्डिहाइड बन जाएगा, सेकेंडरी है तो कीटोन यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट है कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का कैटालिटिक डिकम्पोजिशन मीन्स द वेपर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इफ वी मिक्सड विद द फॉर्मिक एसिड एंड व्हेन पास्ड ओवर द एल्यूमिना, तो हमारा क्या हो सकता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एल्डिहाइड के अंदर चेंज हो सकते हैं। तो मैं इसका स्पेसिफिक इसकी सेलेक्टिविटी आपको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि अगर हमें कोई CH3COOH, सपोज दिस इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको मैं फॉर्मिक एसिड के साथ मिक्स करूं, और फॉर्मिक एसिड के साथ मिक्स करने के बाद इसको जो एल्यूमिना है उसके ऊपर से पास करें। एल्यूमिना मीन्स Al2O3, और जो टेम्परेचर है वो हमारा 400 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम रखें, तो ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ये दैट विल कन्वर्ट इनटू CHO। तो ये बन जाएगा CH3CHO। देन इट विल मीन्स ये एक टाइप का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हम एल्यूमिना भी ले सकते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और थोरिया भी ले सकते हैं। वन मोर थिंग, थोरिया अगर ऐसे कहीं पे लिखे आके आता है थोरिया, और दैट इज एट 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये भी हमारा काम हो सकता है। और वी कैन टेक आल्सो मैग्नस ऑक्साइड। मैग्नस ऑक्साइड, तो मैग्नस ऑक्साइड के केस में आपका अगर मैं इसको यहाँ पे देखें, सपोज CH3COOH अगर रिएक्शन है और उसको मैं मैग्नस ऑक्साइड की प्रेजेंस में विदाउट फॉर्मिक एसिड MnO और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करता हूँ, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COCH3 के अंदर। तो ये तीनों के तीनों आपका किसके लिए स्पेसिफिक हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। अगर आप HCOOH को मिक्स करते हो तो एल्डिहाइड होगा, और अगर आप CH3COOH एक ही लेते हो तो आपका कीटोन बन जाएगा। एक और रिएक्शन देख लो, सपोज करो जैसे मेरे को ना ये लेना है CH3CH2COOH। अगर मैं इसको अलोन लेता हूँ और ऊपर वाले रिएजेंट में से कोई भी रिएजेंट लेता हूँ, तो मेरा क्या बनेगा, ये 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के अंदर मेरा CH3CH2C डबल बॉन्ड O, और दूसरा आपका CH2CH3 ये बन जाएगा। अब सपोज अगर मैं इसको फॉर्मिक एसिड के साथ लेता हूँ CH3
CH2 और आपका C डबल बॉन्ड OH प्लस HC OOH। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ते हैं और यहाँ पे एक वन मॉलिक्यूल्स लेना पड़ता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CHO बन जाएगा और प्लस जो CO2 और H2O तो सभी के अंदर बाहर निकलती है, प्लस 3 6 1 2 3 5 और ये 6 CO2 और प्लस H2O। तो होप ये आपको समझ आई होगी रिएक्शन कि हमने क्या करना है। आप एलुमिना, थोरिया, मैग्नीज ऑक्साइड तीनों में से किसी को भी ले सकते हो, टेम्परेचर आई आल्सो मेंशन हियर। और आप जो कार्बोक्सिलिक एसिड है यू कैन कन्वर्ट इनटू द एल्डिहाइड एंड कीटोन। इफ यू आर मिक्सिंग द फॉर्मिक एसिड you will get the aldehyde. If you are mixing any carboxylic acid with formic acid, you will get the aldehyde. One more thing I will discuss here about the Al2O3. This catalyst here converting the carboxylic acid into aldehyde, and I told you in the chapter of alcohol, ये अल्कोहल को क्या करता है, अगर अल्कोहल में Al2OL2O3 डालते हैं, प्राइमरी अल्कोहल की आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी अल्कोहल एट टेम्परेचर इज 250 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इट कन्वर्ट अल्कोहल इनटू ईथर। एंड अगर अल्कोहल को सेम एल्यूमिना Al2O3 and we raise the temperature around 300 degree centigrade, then it convert alcohol, this alcohol convert into alkene. So hope you remember here 2 or 3 things. First, the selectivity of Al2O3 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करेंगे तो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करेगा। एल्डिहाइड इफ सपोज HCOOH इज देयर देन एल्डिहाइड विल फॉर्म। इफ सपोज कोई एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड कोई दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट वन द कीटोन विल फॉर्म, नॉट एल्डिहाइड। सेकेंड, द Al2O3 का जो आपका सेलेक्टिविटी है 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करेगा और अल्कोहल को 250 डिग्री सेंटीग्रेड में ईथर पे करेगा। इफ सपोज यू रेज द टेम्परेचर देन इट विल कन्वर्ट अल्कोहल इनटू अल्कीन। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ जैम डाइहैलाइड। तो देखते हैं जैम डाइहैलाइड क्या होते हैं। एक होते हैं बच्चों जैम एंड सेकेंड वन होता है विस। जैम और विस। जैम मीन्स सेम कार्बन पे 2 हेलोजन, सेम कार्बन हैज 2 हेलोजन, and vis means adjacent carbon has halogen. Adjacent carbon has 1 halogen, एक हाइलोजन उनके पास में होता है, 1 हेलोजन। तो अभी जैम मीन्स एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन होंगे। तो सपोज दिस इज ए रिएक्शन मैं लेता हूँ CH3CH, सिंपल रिएक्शन अगर मैं लेता हूँ दिस इज जैम डाइहैलाइड, और अगर मैं इसका एक्वस KOH के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इन दिस रिएक्शन CH3CHOH। तो अगर ये यू नो वेरी वेल कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टे नहीं कर सकते, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स लिबरेट हो जाएगा, देन इट विल कन्वर्ट इनटू द CH3CHO। और अगर यहाँ पे ट्राई हैलाइड होता है तो वो कीटोन बन जाता है बच्चों, या फिर सॉरी एसिड बन जाएगा ट्राई हैलाइड पे। और सपोज यू हैव टू मेक द
कीटोन, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई एक ग्रुप ले सकते हैं सी, दिस हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप अगर मैं रख लेता हूँ, CH3 एंड दिस इज Cl, दिस इज Cl, पेन चेंज कर लेते हैं बिकॉज नीचे भी ब्लैक ही है, और इस पे एक्वस KOH का ही रिएक्शन करते हैं या इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं 2H2O से, तो हमारा क्या बनेगा, देन CH3 CH3 and both will replaced by the OH group, and this OH will not stay on the single carbon and the compound will form the CH3COCH3. So we can form both aldehyde ketone by the ZAM dihalide. तो डिफरेंस क्या है, केवल अगर द कार्बन कंटेनिंग द halogen, it contain the hydrogen, obviously the aldehyde will form. If the carbon containing the halogen does not have any hydrogen and it has the one alkyl group also, both alkyl group, then it will form the ketone. So this is by hydrolysis of this one ZAM dihalide. The fourth from alkene. एल्कीन से क्या होता है कि बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या होता है कि इफ सपोज वी dissolve alkene in an organic solvent such as chloroform, carbon tetrachloride or glacial acetic acid. Glacial acetic acid means pure acetic acid, and a stream of ozonized oxygen is passed. Then ozonide is formed and then it is decomposed by passing hydrogen in presence of palladium and zinc dust and water, and the product formed depend upon the structure of alkene. तो एक बार और बोल सकता हूँ मैं आप लोगों को कि क्या होता है कि जो एल्कीन है हम उसको पहले किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म या ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तीनों के अंदर डिजोल्व करते हैं बच्चों. लिसन केयरफुल्ली, दैट इज CCl4, दीज आर द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एंड क्लोरोफॉर्म CHCl3 और ग्लेशियल एसिटिक एसिड. ग्लेशियल एसिटिक एसिड या ग्लेशियल एसिड इसको बोल सकते हैं. ग्लेशियल एसिटिक एसिड मीन्स प्योर फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड. इसमें डिज़ोल्व करने के बाद इसके सपोज करो ये कोई सॉल्वेंट हुआ और इसके अंदर हमने ये डिज़ोल्व कर लिया, और डिज़ोल्व करने पे हम इसके यहाँ से ऑक्सीजन, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन पास करते हैं. ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन O2 यहाँ से पास करते हैं. तो व्हाट विल गेट कि, और फिर उसको हम क्या करते हैं, और इसके अंदर फिर ओजोनाइड बन जाता है एक ओजोनाइड. ओजोनाइड बनने के बाद में फिर क्या होता है कि हम उसको हाइड्रोजन से डिकम्पोज करते हैं, मतलब इसका रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और पैलेडियम कैटलिस्ट. तो हमारे को एक कंपाउंड मिलता है. जो कंपाउंड कैसा होगा, द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन. तो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इल्यूसिडेट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन. हम यहाँ से जो जेई मेंस और एडवांस के अंदर बहुत सारे कंपाउंड में जो ओजोनाइड की जो रिएक्शन आती है उससे स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन को फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं. तो फॉर एग्जांपल देख लो, एक छोटी सी एल्कीन ले लेते हैं हम. जैसे सपोज करो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 एंड CH तो अगर ऐसी कोई एल्कीन है और उसका मैं O3 कर देते हैं, ओजोनाइड, ओजोनोलिसिस जिसको हम बोलते हैं, तो ये कंपाउंड ऐसे ओजोनाइड बनाता है. इसको हम बोलते हैं कि CH3 CH, दिस इज ऑक्सीजन and this is also oxygen. This double bond will break down and this is CH3 this is ozonide.
ओजोनाइड. लेटर वी डिकम्पोज या वी रिड्यूस दिस ओजोनाइड इनटू किसके अंदर इसको करते हैं, H2 से इसको रिड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड पैलेडियम कैटलिस्ट. तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो वी कैन रिमेंबर दिस वन कि हम इसको ऐसे ऐसे भी याद रख सकते हैं. सो ये बन जाएगा हमारा CH3CHO 1 कंपाउंड प्लस दिस इज CH3CH3 एंड दिस इज CHO. तो दो कंपाउंड बनेंगे हमारे यहाँ पे. मीन्स ऑलवेज रिमेंबर break down this bond and give one oxygen this one, one oxygen this one. This is the simple method to learn ozonolysis. For example, if suppose I am taking one more example, if I am taking the CH3 CH double bond CH3, this is the symmetrical alkene, or if we are doing the ozonolysis, then what we will get, the this is one oxygen and I will get the two molecules of CH3CHO. तो इस तरीके की सिंपल रिएक्शन यू हैव टू रिमेंबर. तो ये ओजोनोलिसिस होता है. तो अगर सपोज करो कोई आपको बोलता है, यहीं पे मैं एक चीज़ आपको लर्न कराता हूँ इम्पोर्टेंट, कि सपोज करो ये कोई कंपाउंड है या मेरे को आपको दो प्रोडक्ट मिले HCHO प्लस दिस वन, देन यू हैव टू टेल द कि ये दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनाइड, ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट है. तो एल्कीन बताओ. तो दिस कार्बन आल्सो हैव ऑक्सीजन, दिस कार्बन आल्सो हैव द ऑक्सीजन, रिमूव दीज टू ऑक्सीजन एंड ऐड दीज कार्बन विद डबल बॉन्ड. तो हम ऐसे बना सकते हैं बच्चों कि ये CH2 इस तरीके का कोई कंपाउंड होगा. तो बाय द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन आल्सो. वन मोर प्रिपरेशन बाय एल्कीन, दिस इज बाय ल्यूमेक्स रिएजेंट, जिसको NaIO4 बोलते हैं. तो इस ल्यूमेक्स रिएजेंट से भी हम एल्कीन बना सकते हैं. अर्लियर आई आल्सो डिस्कस दिस रिएजेंट कि भाई अगर आप CH3 या CH, अभी मैं एल्कीन पे चलता हूँ, और डबल बॉन्ड CH3, तो अगर इस पे आप NaIO4 या HiO4 कोई सा भी रिएजेंट डालते हैं तो ये सेम वर्क करते हैं जैसे ओजोनोलिसिस करता था. तो ओजोनोलिसिस में क्या होता था बच्चों कि ये दिस डबल बॉन्ड विल ब्रेक डाउन, और ये ब्रेक डाउन होने के बाद में दोनों को एक एक ऑक्सीजन मिल जाएगी. देन आई विल गेट द टू मॉलिक्यूल ऑफ CH3CHO. अगर यहाँ से टूट जाती है देन दिस इज CH3CHO. और अगर कीटोन अगर हमें बनना है तो कीटोन भी यहाँ से बन सकता है. अगर सपोज करो आपका कंपाउंड कैसा है, दिस CH3 डबल बॉन्ड C एंड दिस इज CH3. इसको अगर आप ओजोनोलिसिस करते हैं, ल्यूमेक्स रिएजेंट NaIO4 डालते हैं या HiO4 डालते हैं, तो सेम means I told you give one oxygen this one, give one oxygen this one, and you will get one compound CH3COCH3 and plus CH3CHO. तो आप एल्डिहाइड कीटोन ओजोनोलिसिस NaIO4 HiO4 दोनों से ही कर सकते हो. थर्ड वन एक और मैंने आपको डिस्कस किया था NaIO4 HiO4 का कि भाई आई टोल्ड यू कि NaIO4 HiO4 और CH3 टेट्रा एसीटेट लैड, ये तीनों के तीनों रिएजेंट क्या होते हैं, अगर कोई डाईओल होती है चीज़ें तो डाईओल को कन्वर्ट कर देते हैं, ये उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं. मीन्स अगर ऐसा कुछ डाईओल से
CH2OH, CHOH और ये CH2OH, दिस इज़ द ग्लिसरॉल। अगर इन तीनों में से किसी को भी आप रिएक्शन करते हो तो क्या होगा, और रिडक्टिव कुछ रिड्यूसिंग एजेंट भी वहाँ पे थोड़ा सा डालते हो, तो अगर ये हॉट और कंसनट्रेटेड होते हैं तो इनको ओइक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, और अगर ये थोड़ा रिडक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट वहाँ पे कोई प्रेजेंट है तो ये किसके अंदर उसको एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे CH2OH, तो ये बन जाएगा आपका HCOOH, और ये भी बन जाएगा HCOOH। अगर हॉट एंड कंसनट्रेटेड लेते हैं, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे, तो अभी यहाँ पे ये बन जाएगा HCHO, और ये भी बन जाएगा HCHO, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यू हैव टू रिमेंबर दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर माइल्ड फॉर्म में, मॉडरेट मतलब कंट्रोल्ड अगर कराते हैं तो कंट्रोल्ड, और अगर कंट्रोल्ड नहीं होता तो ये चीज़ें फिर ओइक एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं, HCOOH के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है फ्रॉम एल्काइन। नेक्स्ट आपका ल्यूमिक्स रिएजेंट के बाद आपका आएगा एल्काइन, कि भाई एल्काइन से हम कैसे इसको बना सकते हैं। तो एल्कीन से बनाया, तो हम एल्काइन से भी देखते हैं कैसे बना सकते हैं। चलो एल्काइन में अगर सपोज करो हम किसी टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रेशन करते हैं, तो फॉर एग्जांपल CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और C आ जाएगा, ये नॉट C, दिस इज माई, why this is not working, wait a moment, my this is okay, this is CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और अगर इस पर रिएक्शन होती है बच्चों, कीप दिस रिएजेंट रिमेंबर, HgSO4 एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड और डाइल H2SO4 की प्रेजेंस में, H2SO4, तो इसमें क्या होगा बेटा, H और OH ऐड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दी मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इस पे H और OH ऐड होंगे, तो देन आई विल गेट द CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH। अब इसके अंदर क्या होगा बच्चों, ये कीटो इनोल आइसोमेरिज्म, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म इसके अंदर हो जाएगी। तो आई विल गेट द कंपाउंड कि भाई CH3 CH2 CHO एल्डिहाइड। तो you will get the aldehyde if suppose alkyne is terminal. alkyne या हम यहाँ पे लिख सकते हैं नोट करके, if alkyne is terminal, then we will get aldehyde, और अगर नॉन टर्मिनल है देन वी विल गेट द कीटोन। देख लेते हैं सब उसको। सपोज दिस इज द CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3, तो ये कोई नॉन टर्मिनल अल्काइन हो सकती है। सेम रिएजेंट HgSO4 एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड और डाइल H2SO4 की प्रेजेंस में H एंड OH विल ऐड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो सिमेट्रिकल अल्काइन है, किधर भी ऐड कर सकते हैं। देन
CH3 सपोज करो मैं CH and COH double bond CH3. Again this कीटोइनोल आइसोमेरिज्म, और कीटोइनोल आइसोमेरिज्म में इसका कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल rather than enol form. This is enol form, or similarly this one also a enol form, and this one again it will keto form. तो यहाँ पे कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा, तो वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं कीटो इनोल आइसोमेरिज्म में कि कब कब इनोल फॉर्म स्टेबल होता है और कब कब कीटो फॉर्म स्टेबल होता है. तो रिवीजन के लिए इनोल फॉर्म स्टेबल होता है अगर वो रेजोनेंस के अंदर हो, कंजुगेशन के अंदर हो, और तीसरा और होता है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे हो रही हो. तो इसका इनोल फॉर्म में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड वहाँ पे चला जाएगा और ये H इसको आ जाएगा, तो ये दैट विल गेट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3. फॉर नॉन टर्मिनल एल्काइन यू विल गेट द कीटोन, और टर्मिनल एल्काइन से आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, और टर्मिनल एल्काइन से और नॉन टर्मिनल एल्काइन से यू विल गेट द कीटोन. नेक्स्ट आपका होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. तो ये रिएक्शन वी आल्सो हैव कवर्ड कि एल्कीन के केस के अंदर जैसे सपोज वी आर टेकिंग द 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक टर्मिनल एल्काइन अगर हम लेते हैं तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, BH3 आई टोल्ड यू टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन की प्रेजेंस में, और फिर ये बेसिक मीडियम होता है H2O2 और OH की प्रेजेंस में. तो वी हैव डिस्कस. तो आई टोल्ड यू कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इसके अंदर, एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग H और OH ऐड हो जाएंगे. तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अगर H और OH ऐड हो जाएंगे तो आई विल गेट द CH3 C डबल बॉन्ड, ये CH2 आ जाएगा और ये OH हो जाएगा, और अगर फिर ये कीटोइनोल फॉर्म में जाएगा तो कीटोइनोल फॉर्म के अंदर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. तो सी द डिफरेंस हियर, अगर मैं डायरेक्ट इस अल्काइन का HgSO4 के साथ रिएक्शन करता देन आई विल गेट द एल्डिहाइड. बट if suppose I am doing the hydroboration oxidation, then I will get the ketone from this reaction, because in case of HgSO4 वहाँ पे क्या होता है कि जो H और OH ऐड होंगे वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, और यहाँ पे जो होंगे वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा. ठीक है बच्चों, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, हाँ मैंने इसको CH2 और ये CH दे दिया. नेक्स्ट आपका आता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हमारा हो गया. नेक्स्ट आता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं बच्चों, देखो बहुत इजी है. फर्स्ट बाय नाइट्राइल, नाइट्राइल मतलब जिसके अंदर CN ग्रुप हो. तो जैसे सपोज करो RC ट्रिपल बॉन्ड N, अगर हम इसके ऊपर R-MgX का रिएक्शन कराते हैं तो यू नो वेरी वेल कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे काम करता है. तो ये वाला पार्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव होता है क्योंकि ये मेटल नॉन मेटल के साथ होता है, तो मेटल इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रखता है. नाइट्रोजन हैज़ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन, तो दिस हैड द पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इट हैज़ द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो दिस R will attack on this part and this partial negative attract this part towards itself. So what you will get here, R and this is C R dash and this is double bond NMgX. Here if we do the hydrolysis, तो
2H2O यहाँ पे लगते हैं बच्चों। तो डायरेक्ट आपने क्या करना है कि जो भी जैसे RCN है तो आप इसको क्या करोगे, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसको यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले N को आप प्रॉपर 3 ऑक्सीजन देंगे, यू विल गेट द NH3। Mg को यू विल गेट द 1 OH, 2 Mg, एक X प्लस OH इट विल फॉर्म, और प्लस आपका जो बनेगा इसको आप क्या देंगे, एक ऑक्सीजन आप देंगे, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR डैश। तो हियर कीटोन विल फॉर्म। अगर यहाँ पे HCN मैं लेता हूँ तो HCN के केस में हमारा क्या बनना चाहिए, एल्डिहाइड। तो रिमेंबर, जब भी इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे यू विल गिव द 3 हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, 1 OH to Mg, and rest oxygen you will give to the carbon. Same thing we will apply here. Suppose this is the HCN and we are doing the reaction of RMgX, और ये RMgX की रिएक्शन से क्या होगा, HC double bond N and this is R and this is MgX, and if you will do the hydrolysis reaction H2O 2H2O, then what you will get you will get, I told you, HCr, give 1 oxygen to this carbon, plus give 3 hydrogen to nitrogen NH3 and give 1 OH to magnesium. So this will be the product. तो आप इस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कर सकते हैं फॉर नाइट्राइल। सेकेंड फॉर ईस्टर्स, see this is also an important reaction. Suppose this is the reaction HC double bond O CH3, और हम यहाँ पे कोई RMgX का रिएक्शन अगर करते हैं तो ऑब्वियसली, तो फर्स्ट स्टेप तो एवरीवन नो कि HCOMgX and this is R and this is OCH3. Now what will happen here कि भाई जो हाइड्रोलिसिस यहाँ पे कराएंगे वाटर का, तो ये क्या होगा कि ये ऑक्सीजन अपना इट विल make the double bond with oxygen. When this make the double bond with oxygen, this will leave the compound, this part will leave the compound, और यहाँ पे क्या बनेगा, RC double bond OH plus MgX, और ये वाला पार्ट OCH3 इसके साथ ऐड हो जाएगा। यू कैन प्रैक्टिस कि भाई अगर आपको सपोज करो ऐसा कोई कंपाउंड मिल जाए CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, वो C2H5 और प्लस RMgX का आपको रिएक्शन कराना पड़े, तो ऑब्वियसली दिस CH3C और यहाँ पे आपका OMgX and this one R and this one OC2H5, और अगर हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O तो व्हाट विल गेट द कंपाउंड कि वेट ये कुछ व्हाट विल गेट द कंपाउंड, ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा, ये ऐसे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O R प्लस दिस वन Mg 1 बॉन्ड X एंड OC2H5, तो ये कंपाउंड आपको ईस्टर से बन जाएंगे। सेकेंड एसिड हैलाइड के साथ में बाय एसिड हैलाइड, तो सेम रिएक्शन यू हैव टू रिपीट। सपोज करो ये आपका HCOCl है, HCOCl मतलब एल्डिहाइड बनेगा, CH3COCl मीन्स कीटोन आपका बनने वाला है।
तो if suppose we will do the reaction of RMgX, then what will be formed? First HCOMgX, and this one is R, this one is Cl. This oxygen will come make the double bond with carbon and it leave the compound. This RC double bond O, and this is H plus Mg. This one is X and this one is Cl. Similarly, if suppose CH3COCl is there, तो what will happen? RMgX, तो डायरेक्ट हम कंपाउंड लिख सकते हैं CH3C double bond O R plus Mg, and it is X and this is Cl. So this is the way we form the aldehyde and ketone by acid halide. Next, from acid chloride. तो acid chloride में there is a one name reaction, and this is name reaction is Rosenmund reaction. This reaction is important, Rosenmund reaction. इसमें भी क्या होता है कि acid chloride से डायरेक्ट हम will get the aldehyde. जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3COCl, तो व्हाट विल हैपन हियर, और यहाँ पे इसका मैं रिडक्शन कराता हूँ रोजनमुंड रिएक्शन के अंदर. यू हैव टू रिमेंबर द रिएजेंट PDBSO4, ये यहाँ पे होना चाहिए, और सल्फर का भी प्रेजेंस आप यहाँ पे ले सकते हैं, और बॉइलिंग जाइलिन what you will get? CH3CHO plus HCl. So this is the compound. Now now what they are asking from this Rosenmund reaction, they are asking the रोल ऑफ BSO4 सल्फर, कि भाई ये BSO4 या सल्फर का रोल क्या होता है. तो आप बोल सकते हैं द फंक्शन ऑफ BSO4 या रोल ऑफ BSO4 एंड सल्फर इज पॉइजन द कैटलिस्ट एट द स्टेज ऑफ एल्डिहाइड. तो ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, जो पैलेडियम होता है इसको पॉइजन करते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं एट द स्टेज ऑफ व्हेन एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड. अदरवाइज इट विल फर्दर ऑक्सीडाइज टू द कीटोन, सॉरी एसिड. तो वो नहीं तो फर्दर एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. तो अगेन यू हैव टू रिमेंबर व्हाट यू हैव रिमेंबर कि एसिड क्लोराइड कैन बी रिड्यूस इनटू एल्डिहाइड विद हाइड्रोजन इन बॉइलिंग जाइलिन के साथ उसको एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड we take here PDBSO4 sulfur, the role of BSO4 and sulfur to poison the catalyst. PD to poison the, इसको लिख सकते हैं to poison the catalyst at aldehyde stage. ये इसको एल्डिहाइड स्टेज पे ही पॉइजन कर देती है, जिससे ये क्या होता है कि फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता. नेक्स्ट आता है इसके अंदर इसका मैकेनिज्म. हम जनरली सिलेबस के अंदर नहीं है और ना वो कभी पूछते इसका मैकेनिज्म. तो अगर आप कमेंट में लिखेंगे कि सर इसका मैकेनिज्म बताओ, तो आई कैन डिस्कस द मैकेनिज्म आल्सो. और ये जो रोजरमुंड रिएक्शन होती है एक्चुअली इट्स स्पेसिफिक फॉर एल्डिहाइड. यहाँ पे एल्डिहाइड ही बनता है. अगर आपने एसिड क्लोराइड के साथ एसिड क्लोराइड से कीटोन बनाना है तो आप RMgX के साथ नहीं बना सकते. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि
एक डाई अल्काइल कैडमियम लेते हैं। तो सिंपल रिएक्शन कि अगर कोई आपका CH3COCl है और इसका मैं रिएक्शन डाई अल्काइल कैडमियम मीन्स सपोज करो R2CD के साथ इन द प्रेजेंस में कराते हैं, इसको थोड़ा सा हीट करते हैं, तो व्हाट विल आई गेट कि CH3C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OR, और हम क्या करते हैं यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल्स हमारे यूज होते हैं, तो ये भी हमारे 2 मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म एंड प्लस CdCl2, CdCl2, that is a very good reaction for the preparation of ketone from the acid chloride. Similarly अगर मेरे को कोई एसिटोफिनोन बनाना है तो एसिटोफिनोन बनाने के लिए सपोज करो मेरे को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl। तो अगर इसका रिएक्शन हम डाई अल्काइल कैडमियम से या मिथाइल कैडमियम से करते हैं तो ओबियसली हमारे को मिल जाएगा एसिटोफिनोन। ये 6H5 एज इट इज़ रह जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे और ये OCH3 विल गेट एंड प्लस CdCl2। तो दिस इज वी विल गेट द कीटोन। तो कीटोन के लिए एसिड क्लोराइड के लिए स्पेसिफिक रिएक्शन होती है आपकी डाई अल्काइल कैडमियम, और एसिड क्लोराइड से आपको स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, ये डायरेक्ट जाती है एल्डिहाइड के अंदर। दिस इज रोजनबॉन्ड रिएक्शन। अगेन आई एम टेलिंग यू दे विल आस्क द फंक्शन ऑफ BSO4 एंड सल्फर। नेक्स्ट रिएक्शन आपका फ्रॉम नाइट्राइल, देखो वन फ्रॉम नाइट्राइल द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑफ नाइट्राइल वी विल गेट द एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम यहाँ पे नाइट्राइल का रिडक्शन कर लें, और दिस रिएक्शन इज ओनली स्पेसिफिक फॉर एल्डिहाइड एंड दिस इज कॉल्ड द स्टीफन रिडक्शन। अब स्टीफन रिडक्शन क्या होता है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर ओनली द कैटलिस्ट, कि अगर कोई भी आपका सपोज करो CH3CN है, ट्रिपल बॉन्ड CN, और उस पर हम अगर SnCl2 और प्लस HCl और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन अगर करते हैं तो व्हाट आई विल गेट द CH3CHO, ये हमारा बन जाता है। एक्चुअली व्हाट हैपन हियर कि जो इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म अगर डिस्कस करें, SnCl2 रिएक्ट विद द HCl and it will form the SnCl4 plus 2H, and this 2H reduce this CS nitrile group to the aldehyde group. For example जैसे CH3CN, इसको ही मैं ले लेता हूँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पे अगर हम प्लस 2H का रिएक्शन और HCl तो होगा ही वहाँ पे, तो रिएक्शन करते हैं तो ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड, अब यहाँ ट्रिपल से NH इंटू HCl, तो ये एक इंटरमीडिएट बनता है। और जब हम इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, बॉयल कर देते हैं H2O के साथ, बॉइलिंग, तो बॉइलिंग पे क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये मिल जाएगा आपको, इसको H2 के दोनों H2 मिलके NH4Cl बन जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका, इसको यहीं से लेते हैं तो CH3CHO प्लस and this become the NH4Cl, so this become the acetaldehyde, or this reaction is called the Stephan reduction. So you have to keep in mind Stephan reduction के अंदर कोई आपका क्या होता है, नाइट्राइल ग्रुप होता है। नाइट्राइल ग्रुप को आप किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, सीधा एल्डिहाइड में SnCl2 प्लस 2HCl की रिएक्शन से। SnCl2 फर्स्ट what it will do, react with HCl, it will form the SnCl4 and this hydrogen, and this nascent hydrogen
reduce this nitrile group to aldehyde group. So this is the reaction is specific for aldehyde only. One more thing, that is DIBAL, diisobutyl aluminium hydride. This reagent also has its own importance. तो डिबाल का क्या होता है कि ये भी दैट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहाँ पे मैंने क्यों मेंशन किया इसको कि अगर मेरे पास सपोज करो ऐसी कोई नाइट्राइल ग्रुप है जिसके पास अनसैचुरेशन है, तो अनसैचुरेशन है तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2CN. अगर मेरे को इसका रिडक्शन करना है तो अगर मैं स्टीफन रिडक्शन से करूँगा तो दिस डबल बॉन्ड आल्सो रिड्यूस एंड कन्वर्ट इनटू द सिंगल बॉन्ड. बट इफ आई एम यूजिंग द डिबाल डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो दैट इज स्पेसिफिक होता है CN को CHO में कन्वर्ट. इट विल नॉट अफेक्ट द डबल बॉन्ड. तो व्हाट आई विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHO. तो विदाउट अफेक्टिंग द डबल बॉन्ड it will convert nitrile to aldehyde group. So remember the importance of this डिबाल कि भाई डिबाल से हम क्या कर सकते हैं. नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी ऑक्सो प्रोसेस, और इसको हाइड्रोफॉर्मिलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफॉर्मिलेशन. व्हाट हैपन इन दिस रिएक्शन कि भाई जो CO और CH2 है वो आपका ऐड हो जाएगा किसी भी एल्कीन के ऊपर. हाइड्रोफॉर्मिलेशन, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग ए कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और आई एम रिएक्टिंग द कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, और जो हमारा कैटलिस्ट है वो आपका CO कोबाल्ट CO. इनकी जो नेमिंग होगी जो कार्बन मोनोऑक्साइड कोबाल्ट कार्बन टेट्रा कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके साथ कैटलिस्ट का, और इनकी जो नेमिंग होगी वो हम D और F ब्लॉक के अंदर, सॉरी नॉट DF ब्लॉक, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर डिस्कस करते हैं. तो इस कैटलिस्ट के ऊपर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये क्या करेगा बच्चों कि एक पार्ट को एक CHO दे देगा और दूसरे पार्ट को एक H दे देगा. मीन्स अगर हमें यहाँ पे कार्बन की चेन इंक्रीज करनी हो, वी हैव टू इंक्रीज द कार्बन चेन, तो इस रिएक्शन को हम प्रोसीजर में ला सकते हैं. CH3 देखो, इस कार्बन को मिलेगा एक हाइड्रोजन, इसको मिलेगा एक CHO ग्रुप, तो दैट इज CH3 CH2 CH2 CHO. वी विल गेट दिस प्रोडक्ट. और ये अगर आप देखोगे तो जो नेट रिएक्शन है वो एंटी मार्कोनिकोफ रूल के थ्रू ऑपरेट हो रही है, और द रिएक्शन इज ऑलवेज गिव आइसोमेरिक स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन एल्डिहाइड. और जो स्ट्रेट चेन एल्डिहाइड होगा वो डोमिनेंट होगा रेदर देन आपका ब्रांच के ऊपर. तो जस्ट हाइड्रोफॉर्मिलेशन मतलब एक तो यहाँ पे देखो बच्चों, एक तो फॉर्माइल ग्रुप अटैच होगा एंड सेकंड हाइड्रोजन अटैच होगा. तो जो CHO वाला पार्ट है वो एंटी और H ये एंटी मार्कोनिकोफ रूल के थ्रू ऑपरेट होगा. सी नेक्स्ट. सो दिस इज ऑक्सो प्रोसेस एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोफॉर्मिलेशन process. Next reaction is Walker process, and this is reaction where the alkene is converted into the aldehyde. For example, जैसे कोई भी alkene है
अगर मैं उस पर PdCl2, यू हैव टू रिमेंबर द कैटलिस्ट फॉर दिस वाकर प्रोसेस एंड स्टीफन के अंदर नाइट्राइल ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू द एल्टिहाइड, और हियर द CH2 मीन्स एल्कीन विल कन्वर्ट इनटू द एल्डिहाइड ग्रुप. फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन करूँगा PdCl2 आपका कैटलिस्ट और प्लस वाटर, और इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 और एयर के पास ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, देन आई विल गेट द प्रोडक्ट SCH3CHO. दिस इज द वॉकर प्रोसेस. मैकेनिज्म क्या होती है इसकी कि जो PD होता है, पैलेडियम होता है, HCl के साथ रिएक्ट करता है और 2HCl के साथ, that will form the PdCl2. It will form the PdCl2 प्लस हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन अब आपका हाइड्रो मीन्स इसको मतलब रिडक्शन का काम करेगी. सेकेंड जो PD है वो दैट विल रिएक्ट विद द CuCl2 और इसके दो मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा, तो इट विल फॉर्म द PdCl2 प्लस 2CuCl. नाउ इट विल वर्क एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और फिर ये ऑक्सीजन के साथ जाके ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई दूसरी एल्कीन लेनी है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, CH3CH डबल बॉन्ड, सपोज दिस इज CH2, और इस पे अगर हम ये वाले रिएक्शन करते हैं ऊपर, सपोज करो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, PdCl2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एंड O, एयर या ऑक्सीजन वी कैन राइट. तो व्हाट विल हैपन हियर, CH3C डबल बॉन्ड O and this is CH3. One hydrogen is here, means according to the anti-Markovnikov rule, and one oxygen is here. Similarly, one hydrogen is here and one oxygen is here. H and O are add according to anti-Markovnikov rule, अगर बच्चों कोई unsymmetrical alkene आपको मिलती है तो. Next, this reaction also we have discussed by NaIO4 CH3COO का whole tetraacetate lead, HiO4 iodic acid, कोई भी अगर आपका डाइओल अगर है CHOCHOH एंड R डैश, तो what you will get, कोई सा भी रिएजेंट अगर आप यूज़ करेंगे तो RCHO प्लस R dash CHO you will get. Next नहीं, नेक्स्ट कुछ भी नहीं है. तो दीज आर द 12 प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन. एक बार रिकैप देख लेते हैं. रिकैप देखने के लिए हम स्टार्टिंग से इसको डिस्कस, यहीं पे मैं रिकैप का बना देता हूँ. तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था बच्चों रिकैप. देखो सबसे पहले अल्कोहल से 3 वे के अंदर डिस्कस किया था. फर्स्ट वे क्या होता है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन. सेकंड था आपका कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड. थर्ड वन था आपका ओपेनर ऑक्सीडेशन. और उसके बाद अल्कोहल के बाद आपका था कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर व्हाट आई टोल्ड यू, अगर HCOOH मिक्स करोगे किसके साथ, किसी भी एसिड के साथ, देन यू विल गेट द एल्डिहाइड. एंड इफ सपोज अगर आप कोई सिंपल कोई भी RCOOH लेते हो एल्काइल ग्रुप, देन यू विल गेट द कीटोन. जो इसके अंदर क्या थे, जो आपके एजेंट थे या कैटलिस्ट थे, तो वो था आपका कौन कौन से कैटलिस्ट थे बेटा, एल्यूमिना Al2O3 एंड इट वर्क एज द 400 डिग्री सेंटीग्रेड. सेकेंड
थोरिया, और थर्ड वन मैग्नस ऑक्साइड, MnO, मैग्नस ऑक्साइड। ये मेरे को स्मॉल लेटर में लिखना था तो मैं लिख देता हूँ, थोरिया और MnO, मैग्नस ऑक्साइड। तो ऑल दीज थ्री रिएजेंट विल कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर किसी के साथ HCOOH है तो देन यू विल फॉर्म द एल्डिहाइड, और अगर इससे अलग कोई एसिड है तो यू विल कन्वर्ट द कीटोन। अगेन आई one more thing, Al2O3, I told you it convert alcohol into ether and alkene. If temperature is 250 degree centigrade, it will convert alcohol to ether. If suppose 300 degree centigrade, it convert into this one, alkene. Then after carboxylic acid, by jam dihalide, जैम डाइहैलाइड से क्या होता था बच्चों कि अगर टर्मिनल है देन यू विल गेट द टर्मिनल से एल्डिहाइड मिलता था आप लोगों को, एंड नॉन टर्मिनल देन ये आपको क्या मिलता था, कीटोन मिलता था। सेकंड एल्कीन था, सॉरी ये आपका फर्स्ट वन था, ये आपका सेकंड वन था प्रिपरेशन, ये आपका थर्ड वन प्रिपरेशन था, और फिर फोर्थ वन आपका एल्कीन। एल्कीन में कौन कौन से प्रोसेस थे बच्चों, एक आपका ओजोनोलिसिस था, ओजोनोलिसिस से आप बनाते थे, और सिमिलरली आप NaIO4 लिमिक्स रेजेंट HiO4 इससे भी आप बना लेते थे। आप इससे इन बोथ हम अगर आपको प्रोडक्ट पता है तो यू कैन इल्यूसिडेट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। फोर्थ हम डिस्कस करते थे एल्काइन से। एल्काइन में एल्काइन हियर आल्सो हैव टू मेथड, वन इज टर्मिनल एल्काइन या बाई हाइड्रेशन, और दूसरा होता था हमारा बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और H2O2 OH की प्रेजेंस में। हाइड्रेशन, व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ हाइड्रेशन, इफ टर्मिनल, नॉन टर्मिनल के अंदर आपको मिलता था कि आपको एल्डिहाइड, और नॉन टर्मिनल के अंदर आपको मिलता था कीटोन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर आपको अगर सपोज करो टर्मिनल या नॉन टर्मिनल है तो भी आपको एल्डिहाइड और कीटोन भी मिल सकता था, डिपेंड अपॉन कि कार्बन के साथ दूसरा कौन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग H और OH ऐड होते थे, और इन दोनों के अंदर मार्कोनिकोफ रूल के अंदर H और OH ऐड होते थे, और फिर उनका कीटो इनोल आइसोमेरिज्म होता था दोनों के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट द एल्काइन। फिर हमने फिफ्थ प्रिपरेशन या सिक्स्थ जो ली है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ली है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने HCN पे भी डिस्कस किया है, फिर हमने ईस्टर पे भी रिएक्शन की है, आई टोल्ड यू द मैकेनिज्म, और फिर हमने एसिड RCOCl से भी डिस्कस किया हुआ था। फिर अपना एसिड क्लोराइड के साथ अगर इसको लेते हैं सिक्स्थ वन RCOCl, इसके साथ रोजनमुंड रिएक्शन भी वी हैव डिस्कस। दिस इज ओनली फॉर एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से अलग फिर आपको कीटोन अगर बनाना होता तो CdCl2 से ये डिस्कस द कीटोन आप बनाते थे। नेक्स्ट फिर स्टीफन रिडक्शन हमने पढ़ा। स्टीफन के अंदर क्या होता था, देन जो CN ग्रुप है दैट विल कन्वर्ट इनटू द CHO ग्रुप। वाकर प्रोसेस के अंदर, वाकर प्रोसेस में क्या होता था, जो एल्कीन है आपका डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ही CHO ग्रुप के अंदर कन्वर्ट होता था। डिबाल
स्पेसिफिक है किसके लिए, CN को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, CHO के अंदर, बट विदाउट अफेक्टिंग डबल बॉन्ड। ये आपका हम बनाते थे डिबाल से वाकर प्रोसेस। वन मोर प्रोसेस ऑक्सो प्रोसेस, CO प्लस H2 का रिएक्शन करते थे किसी भी एल्कीन के ऊपर। तो जो भी एल्कीन है उस पर एक पार्ट में H और जो दूसरा पार्ट होता था CHO ग्रुप चला जाता। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड हाइड्रो फॉर्मुलेशन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन भी ऐड होगा और फॉर्मुलेशन पार्ट भी ऐड हो जाता था। सो और वन मोर था कि भाई अगर आपका डाईओल अगर प्रेजेंट है CH2OH CHOH, तो इस पे आई टोल्ड यू NaIO4 HiO4 टेट्राएसीटेट लेड, ये इसको ब्रेक डाउन करके ऑक्सीडाइज कर देते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। होप you enjoy and you learn a lot of from this video. In the next video we will discuss the chemical property. In chemical property I'll make the two video, physical and chemical property part 1 and second one chemical property, क्योंकि इसकी chemical property भी बहुत ज़्यादा है। ओके बच्चों, थैंक यू everyone।